Welcome to another fresh day to all of you. I am Somiranjan Nayak, Assistant Professor in Mechanical Department at Vedant Institute of Technology. As you all know about that, I am continuing my classes of Transmission System in Automobile subject. And today we are going to discuss about the limited slip differential, which is the overcome of the difficulties of the open differential. We already discussed about open slip differentials, that the function and the working principles, advantages, disadvantages, everything. One disadvantage open differential that we have, that is traction problem. When there is a slippery condition, okay, in any one of the wheel at that time, or in the two wheels at that time, what's happened, open differential doesn't able to know about how to transfer the torque and power. The more amount of power, the more amount of torque, the more amount of energy get losses, and the traction losses takes place at that time. So for that purposes, the engineers that going to develop the new type of differential overcoming the problem of the open differential is limited slip differential, LSD. Short form is LSD. Okay, so after the LSD, it is the pre-final part or the pre-final section of the transmission system. After that, there is only one section left, that is wheels, rims, tires, or the rear axle part. Okay, which will be discussed in the later onwards. The limited slip differential overcoming the demerit or the limitations of the open differential. What are the open differential demerit, or what are the disadvantage, I already get discussed in my previous classes. Go to my previous classes to study about it, to know about that. And after that, we are going to be a study and can able to clear about the limited slip differential working principles. In my previous video, just before it, in the open differential link, in my YouTube video, there is a chapter open differential. Go for that for the details information. After that, we are going to be understand these classes, that is limited slip differential. So limited slip differential are used in automobile to overcome the traction difference problems of the different wheels and drive wheels. The limited slip differential is a type of the differential that allows two output shaft rotate at different speed and the maximum difference between the two shafted. इसका मतलब क्या है, समझाता हूँ. इसका मतलब ये है कि जब दोनों पहिया जो होता है, जो अलग अलग मूवमेंट में होता है और अलग अलग स्पीड में होता है, एट द टाइम अगर किसी का कोई ट्रैक्शन प्रॉब्लम होता है, मतलब द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द व्हील is known as the traction forces, and traction problem means slip of the force is very reduces at the time. Why it is reduces? Because there is a slippery condition come into contact, the friction become reduces. Suppose किसी भी एक पहिया के नीचे कोई फ्लूइड आ गया, पानी आ गया, कीचड़ आ गया, तो वहां पे क्या है ना, फ्रिक्शन कम हो जाता है. तो एट द टाइम क्या होता है ना, व्हील आगे नहीं मूव कर पाता, ट्रैक्शन फोर्स वहां पे फेलोर हो जाता है और वहां पे ट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है. उसी हिसाब से उस टाइम पे क्या होता है ना, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल क्या करता है ना, जो अपोजिट साइड ऑफ द व्हील होता है, द अपोजिट साइड ऑफ, सपोज एक पहिया में पानी आ गया है और सपोज गाड़ी जा रहा है, सो एनी वन ऑफ द व्हील दे कम अक्रॉस इन ऑन द रोड by means of any fluid or water, any mud, whatever may be. तो स्लिप टेक्स प्लेस एट दैट टाइम. वहां पे जो स्लिप होता है ना, व्हील वहां पे पावर जो टॉर्क है वहां पे लॉस होता है. तो अपोजिट साइड जो व्हील है ना, वो ट्रैक्शन फोर्स में होता है, वहां पे हाई टॉर्क चाहिए. ओपन डिफरेंशियल क्या किया ना, उसको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे तो ज्यादा मूवमेंट हो रहा है. मतलब क्या होता है ना, हम कीचड़ में सपोज एक पहिया धस गया है, ओके, तो वहां पे क्या होगा ना, जो पहिया धस गया है ना, उसका रोटेशन ज्यादा बढ़ जाता है. क्यों बढ़ जाता है? डिफरेंशियल को ये लगता है कि ये पहिया आगे नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो इसका लिए क्या करता है ना, ज्यादा टॉर्क उसी पहिया को दे देता है. जबकि प्रैक्टिकली में क्या होता है ना, उसका ऑपोजिट पहिया जो होता है ना, वो ट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है. अगर वहां पे ज्यादा टॉर्क जाता है या जहां वहां पे ज्यादा पावर जाएगा, तो गाड़ी आसानी से मूव करेगा, वो ओपन डिफरेंशियल नहीं कर पाया. तो लिमिटेड स्पीड डिफरेंशियल क्या किया ना, जहां पे ज्यादा टॉर्क चाहिए, जहां पे ट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, उसी में ज्यादा टॉर्क को ट्रांसमिट किया. और जहां पे सबसे कम टॉर्क चाहिए, कम फोर्स चाहिए, वहां पे कम फोर्स या कम टॉर्क ट्रांसफर किया. इसका मतलब है कि लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल क्या किया ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को एनालिसिस करके फोर्स और टॉर्क को ट्रांसमिट किया, जो ओपन डिफरेंशियल नहीं कर पाया. ओके, तो द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू व्हील इज डिफरेंट, and at that time slip, the limited slip differential, the just flow the torque and the power accordingly to maintain the practical problem and overcoming the slip problem of the vehicle. उसको अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना है, उसको अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना है का, नेक्स्ट स्लाइड में, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में सिमेट्रिक डायग्राम है. ओके, सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ द लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल. लिमिटेड स्पीड डिफरेंशियल का क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या सेक्शन है, उसका काम क्या है.
ऑलरेडी आई डिस्कस अबाउट दैट. प्रोपेलर शाफ्ट से पावर आता है. ओके, द पावर इज जस्ट ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्रोपेलर शाफ्ट टू द विवल गियर को आएगा, उसके बाद टू द क्राउन गियर. ओके, ये कॉमन चीज है. और ये लेफ्ट साइड रियर एक्सिल है, ये राइट साइड रियर एक्सिल है. ओके, बट what's happened over here, this is the another most important limit, this is the cage that you know. यहाँ पे देखो LSD केस है. ओके, इसको LSD केस कहते हैं, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल LSD केस. ओके, प्रेशर कैमरिंग यहाँ पे है, तो प्रेशर कैमरिंग और क्लच प्लेट यहाँ पे. तो ये जो ओपन डिफरेंशियल था और यहाँ पे जो ये लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल था, इसमें सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे क्लच प्लेट यूज किया गया है. ओके, वहां पे क्लच प्लेट नहीं था. यहाँ पे देखो क्लच प्लेट, वहां पे रिंग गियर था, वहां पे स्पाइडर गियर था, वहां पे साइड गियर था, वहां पे बिवल गियर था. ओके, एवरी गियर्स आर देयर एट दैट टाइम्स. ओके, रिंग गियर, बिवल गियर, स्पाइडर गियर, साइड गियर, बट देयर इज नॉट ए सिंगल क्लच प्लेट दैट इज गोइंग टू गेट अप्लाई ओवर हियर. क्लच प्लेट. ओके, क्लच प्लेट एंड देयर इज ए प्रेशर रिंग. यहाँ पे लिखा है प्रेशर रिंग. ओके, वो बीच में यहाँ पे एक प्रेशर रिंग है. ओके, प्रेशर रिंग का मतलब क्या है? यू कैन से दैट प्रेशर रिंग्स का मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को, मतलब हम जो स्प्रिंग होता है, जो रिंग होती है, वो क्या करता है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को एक चीज़ को लेके आता है. ओके, उसका काम वही है. वो एनर्जी रिस्टोर करके एनर्जी छोड़ देता है. जस्ट लाइक फ्लाईव्हील जैसे काम करता है. स्प्रिंग का काम क्या होता है ना, एक टाइम पे एनर्जी स्टोर करके रखता है, काम खत्म हो गया तो ओरिजिनल पोजीशन को जाके स्प्रिंग उसको छोड़ देता है. ओके, so this is also pressuring working principle over here. Okay, this is the same working principle over here. तो क्लच प्लेट यहाँ पे क्यों लगाया गया है? क्लच प्लेट का काम क्या है? सिंपल थिंग्स यहाँ पे है. ओके, इट इज वन थिंग, इट इज वेरी सिंपल दैट आई ऑलरेडी डिस्कस माय क्लच प्लेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लच प्लेट इन माय प्रीवियस वीडियो. गो फॉर दैट एंड गो टू दैट वीडियो टू बी नो डिटेल्स अबाउट इट. क्लच प्लेट में एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है. जहाँ पे एंगेजमेंट होगा वहाँ पे पावर और टॉर्क ज़्यादा ट्रांसमिट होगा, वहाँ पे डिसएंगेजमेंट होगा वहाँ पे पावर ट्रांसमिट ज़्यादा नहीं होगा. सिंपल कॉन्सेप्ट है क्लच में. ओके, द पावर विल नॉट ट्रांसमिट मोर अदर टाइम डिसएंगेजमेंट, इन एंगेजमेंट पावर इज ट्रांसमिटेड मोर. तो व्हाट्स हैपेंड ओवर हियर, यहाँ पे दो टाइप ऑफ क्लच प्लेट है. वन इज लेफ्ट हैंड साइड में क्लच प्लेट है, लेफ्ट रियर एक्सिल में. राइट हैंड साइड में क्लच प्लेट है, अदर राइट रियर एक्सिल में. तो व्हाट्स हैपेंड, the general function of this type of limited slip differential is that when, suppose take example, in the right hand side wheel, okay, in right hand side wheel, it is the traction force is reduces and the slippery condition comes into contact, and the left hand side there is traction force is very high. So what happened, the left hand side clutch plate get engaged. That means the amount of torque that transmitted from the propeller shaft, the more amount of torque will move towards the left hand side wheel toward the high traction force, and the less and very less amount of torque or less amount of power get transmitted to the less traction force. इसका मतलब है कि अगर राइट साइड पहिया पानी में है या कीचड़ में है, वहां पे स्लिप है, और लेफ्ट हैंड साइड पहिया फ्री है, वहां पे ट्रैक्शन फोर्स ज्यादा चाहिए वो आगे मूव करने के लिए. यहाँ पे जितना फोर्स दोगे वो स्लिप कर जाएगा, आगे नहीं घूमेगा, आगे नहीं जाएगा, लेकिन टायर स्लिप होके वहां पे ज्यादा घूमेगा. यहाँ पे पावर लॉसेज ज्यादा हो रहा है, इसीलिए क्या होता है ना, यहाँ पे वेरी लेस पावर ट्रांसमिट होता है. वेराज यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्लच प्लेट है वो एंगेज हो जाएगा और राइट हैंड साइड में डिसएंगेज हो जाएगा. तो डिसएंगेज हुआ तो लेस पावर ट्रांसमिटेड, जिस टाइप का ओपन डिफरेंशियल में होता है. लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड में लेस पावर ट्रांसमिट होगा, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो एंगेजमेंट हो जाएगा क्लच. तो यहाँ पे ओपन डिफरेंशियल टाइप का काम नहीं होगा, ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट होगा. इसका जस्ट रिवर्स क्या है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में इफ देयर इज इन लेफ्ट हैंड साइड द ट्रैक्शन फोर्स इज लेस, slippery condition, left hand side is come across as right hand side require more torque, same thing will be happen. What's happened in the right hand side part, what's happened, the clutch get engaged, the more torque will flow to the right hand side, and in the left hand side it get disengaged, the less amount of torque will be transmitted for the left hand side. तो इसका मतलब ये है कि अगर सपोज लेफ्ट हैंड साइड में स्लिपरी कंडीशन आ गया और राइट हैंड साइड में ज्यादा टॉर्क चाहिए, ट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, और लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा टॉर्क नहीं चाहिए और लेस ट्रैक्शन है, पानी और स्लिपरी कंडीशन लेफ्ट में आ गया, तो राइट हैंड साइड में जो क्लच प्लेट है वो एंगेज हो जाएगा, ज्यादा टॉर्क वहां ट्रांसमिट होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में जो क्लच है और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी क्लच है वो डिसएंगेज हो जाएगा और वेरी लेस अमाउंट ऑफ टॉर्क यहाँ पे ट्रांसमिट होगा. तो इट इज ए कंप्लीट फंक्शन of the limited slip differential LSD at the symmetric diagram of the LSD. We can able to discuss very clearly in the next animated video.
यू कैन गो थ्रू इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। हाँ, और एक कंडीशन है, अगर दोनों साइड में दोनों व्हील में अगर कीचड़ आ गया, दोनों व्हील में अगर कीचड़ आ जाता है तो क्या होता है ना, सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टॉर्क। फॉर एग्जांपल एक साइड में कीचड़ कम है, दूसरे साइड में ज्यादा कीचड़ है। फॉर एग्जांपल वन साइड देयर इज द स्लिप कंडीशन इज मच मोर low, one other side the slip condition is much more high, but both conditions there is a slippery condition. So accordingly the traction force is wherever is high, the torque will be force is high. Simple concept it, wherever the traction force is high, the torque will be move high, the torque will be transmit high. The traction force is less, the torque will be move less. So what is the traction force? Traction force means it is the फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द रोड। ओके, जहाँ पे मॉड या वाटर आ जाता है वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और ट्रैक्शन फोर्स रिड्यूस हो जाता है। दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो अबाउट इट। ओके, अनदर वन कंडीशन इज देयर, अगर दोनों पहिया में सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड आ गए, इसका मतलब है व्हेन देयर इज टू ट्रैक्शन फोर्स ऑफ बोथ ऑफ द साइड ऑफ द व्हील इज वेरी लेस, at that time what's happened, same amount of torque will be transmitted, the LSD will be work as a open differential, so at that time we have to be push the vehicle। इसका मतलब है कि अगर दोनों साइड में पहिया में अगर सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड आ गया, अगर ट्रैक्शन प्लस दोनों पहिया में लेस है, तो हमें क्या करना होगा, गाड़ी को पीछे से धक्का मारना होगा, क्योंकि वहां पे एलएसडी एक ओपन डिफरेंशियल की तरह काम करेगा। दोनों क्लच प्लेट डिसएंगेज में रहेगा क्योंकि दोनों साइड में ट्रैक्शन फोर्स इक्वल जैसा है। एलएसडी का काम यहाँ इतना है कि ट्रैक्शन फोर्स जहां पे ज्यादा होता है वहां ज्यादा टॉर्क जाएगा, और ट्रैक्शन फोर्स जहां से कम होता है वहां कम या बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ टॉर्क ट्रांसमिट होगा, जो ओपन डिफरेंशियल नहीं करता है। ओपन डिफरेंशियल सिर्फ अपने डिस्टेंस ट्रैवल ऑफ द व्हील को फॉलो करके टॉर्क को ट्रांसमिट करता था, लेकिन यहाँ पे ये डिस्टेंस ट्रैवल नहीं, ये देखता है कि ट्रैक्शन फोर्स किसका ज्यादा है और ट्रैक्शन फोर्स किसका कम है। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ओपन डिफरेंस एंड एलएसडी एंड द वर्किंग प्रिंसिपल एंड द सिमेट्रिक डायग्राम। For the next we can able to go and able to discuss from by this animated video about the more details about the working principle. So in this animated video there is a rear axle wheel are there, and one wheel, that is take one example, that is in the right hand side wheel in the slippery condition। वहाँ पे ब्लू कलर की जहाँ पे व्हील है और द ब्लू कलर जहाँ पे पानी है, द ब्लू कलर इज द वाटर, द ट्रैक्शन फोर्स इन द राइट हैंड साइड इज वेरी वेरी लेस, बट द रोटेशन ऑफ द व्हील और एन इज वेरी हाई। Okay, the wheel slips at that time, the force, the losses, the torque is losses, the power is losses at the right hand side, but the wheel is rotating very high. So general condition what's happened, more amount of torque by open differential move towards the right hand side wheel, less amount of torque is moving towards the left hand side wheel। Okay, तो अब क्या होगा, इसको ओवरकम करने के लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर एलएसडी सिस्टम। तो दिस इज द एलएसडी सिस्टम, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, द बीच में जो चीज है जो आगे नहीं था, इज वन द मिडिल में एक चीज है, वो है तुम्हारा प्रेशर प्लेट या तुम्हारे प्रेशर रिंग या प्रेशर स्प्रिंग, तुम जो कह सकते हो। ओके, ये दोनों साइड गियर है, पिनियन गियर, रिंग गियर, साइड गियर दोनों है, एज लाइक सिमिलर टू ओपन डिफरेंशियल। ये केसिंग है, एलएसडी केसिंग। केसिंग के अंदर स्पाइडर गियर है, एज सिमिलर टू ओपन डिफरेंशियल। बस ये चीज डिफरेंस है, ये क्लच प्लेट है। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्लच प्लेट है और राइट हैंड साइड में भी क्लच प्लेट है, केसिंग के अंदर है। द फ्रिक्शन डिस्क, अ नंबर ऑफ plates, pressure plates and friction discs, they arranges to form a clutch plate। okay, the friction discs and side gear are locked। इसका मतलब है कि there is steel plate, friction plate and pressure plate all are connected in a series to form a clutch plates। there are series number of plates to form a clutch plate in the left hand side, similarly at the right hand side of the transmission system। okay, यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ जो घूम रहा है ये पावर डिसएंगेज और एंगेजमेंट की है। ओके, अगर फोर्स ज्यादा पड़ा तो वो एंगेज होगा अकॉर्डिंग टू आरो मार्क, पीछे आएगा वो तो डिसएंगेजमेंट है। नेक्स्ट, पावर फ्लो होगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या होता है, राइट हैंड साइड में जो ट्रैक्शन फोर्स है लेस है, राइट हैंड साइड में वाटरी स्लिपरी कंडीशन है। लेफ्ट एक्सिल एंड केस मूव टुगेदर, सब कुछ एक ही साथ घूम रहा है, यहाँ पे कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक ही साथ सब कुछ घूम रहे हैं। बीच में जो फ्रिक्शन रिंग है वो भी बीच में है, वो उसका काम क्या है, ओरिजिनल पोजीशन को क्लच प्लेट को लेके आना आफ्टर गेट एंगेज और डिसएंगेज कंडीशन। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड हियर, जस्ट लुक,
there is a bevel gear or spider gear in the button, and in the side में वो ring gear है, okay, side gear है, okay, side gear, sorry, it is not a ring gear, it is a side gear and the bevel gear. Both the axial force and spinning, that is tangential force and axial force and rotational force, three forces acting at a time in it. This is the side axle or rear axle, one of the side of the left hand side rear axle. They are connected in such a way that they can move forward and backward, means engagement and disengagement. Okay, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे क्लॉच प्लेट है तो ज्यादा ट्रैक्शन फोर्स इज रिक्वायर्ड आर मीन्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज गेट एंगेज्ड. ओके, एरो मार्क में फोर्स पड़ा और वो एंगेज हो गया, ज्यादा टॉर्क मूव करेगा. ओके, so just look the condition now over here, how it is work. High torque required at the left hand side wheel, low torque required at the right hand side wheel, because in the right hand side wheel traction force less, left hand side wheel traction force is high. High thrust force is developed over here in the left hand side wheel, in the left hand side gear, and it's moved towards the left hand side. The clutch plate will be locked, the spring is pushed towards the left hand side by means of side gear, and the clutch plate get engaged. If it is engaged, left hand side get engaged and right hand side get disengaged. That means the high torque is transmitted towards the left hand side. Okay, the right hand side low thrust, arrow mark is there, right hand side low thrust, where in the left hand side the orange color arrow mark is given, high thrust will be transmit, because in a high thrust the clutch plate get engaged. Okay, this is the complete working principle of LSD or limited slip differential. Okay, the same thing over here, आरो मार्क जहां पे है वो एंगेजमेंट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिसएंगेजमेंट हो जाएगा. फ्रिक्शन डी स्टील प्लेट स्लिप टुगेदर. ओके, so right hand side disengage, left hand side engage, high torque provided या move towards the left hand side. After that when it is move forwarded, व्हीकल जब उस ओवरकम कर लेगा प्रॉब्लम, वो सिर्फ अपने हिसाब से आ जाएगा by means of friction spring in the original positions. Okay, in the next class we are going to discuss about the wheels and tires. Okay, but from today onwards it is the last classes of transmission system, that is wheels and tire the part. Okay, तो अभी तक मैंने जितना डिस्कस किया है वो ट्रांसमिशन सिस्टम खत्म हो चुका है. ये लास्ट पार्ट है व्हील्स एंड टायर्स, जो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा. ओके, इन द नेक्स्ट क्लासेस. So I complete discuss today about the LSD working principle, symmetric diagram, animated video, the advantages and disadvantages. Disadvantages is not there for the LSD because it overcome the disadvantages of the open differential. The advantages is same and similar to that of open differential, as it is transmitted the torque by means of 90° and by means of relative motion is difference at the difference relative motion, the amount of torque and power transmitted is controlled by the LSD. The power losses is reduces and the traction force and slip problem also overcome by the LSD. Okay, so up to 8 the transmission system up to the LSD or the differential is completed. From the next class, the last section of the transmission system, wheels and tires, going to discuss. It is a very less, very short chapters, wheels and tires. And another in the that part of another classes, I will take another classes for the discussion about the automatic and transmission and manual transmission differences. Up to 8, thank you very much to watch my video. Stay tuned for my next video. Thank you very much.